بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے اور میری عمر 17 سال تھی اور میں اپنے کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا سب سے کٹا کٹا رہتا تھا، کسی سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ کالج میں نیا تھا اور کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن مجھ کو وہ دور دور سے دیکھا کرتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد اور بہت ہی لاڈلی تھی، لیکن مجھ میں زمانے کسی چالاکی نہیں تھی۔ میں بہت معصوم تھی، میں نے زمانہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں خوبصورت تو بہت زیادہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ میرے باپ نے ہمیشہ مجھے چھپا کر ہی رکھا۔ وہ کبھی بھی کسی ایرے غیرے سے میرا رشتہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کسی ایسے گھر جاؤں جہاں میری بہت زیادہ قدر کی جائے۔ میری خوبصورتی چار چاند لگاتی میری نیلی آنکھیں، جو مجھے اور بھی خوبصورت بناتی تھی۔ کوئی بھی میری آنکھوں کو ایک دفعہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور حسن، وہ بھی میری آنکھوں میں کھویا رہتا تھا۔ اس کا یہ دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی اور ہم نے ایک دوسرے سے قائم ہونے والے رشتے کو دوستی کا نام دے دیا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ حسن نے کہا کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی اچھے خاندان سے تھا اور اس کی نوکری بھی لگنے والی تھی۔ میری ماں باپ کے مقابلے میں وہ کچھ کم حیثیت ضرور تھا۔ میرے ماں باپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ان سے چھوٹے گھر میں ہو، پر میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ دیا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو صرف حسن سے ہی کرنی ہے۔ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ میرے پاپا نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے ضد کی اور ضد میں آ کر ان سے بدتمیزی بھی کر ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن کی دوستی کے بدلے کسی کو ہمسفر نہیں بنایا جا سکتا، پر میں نہ مانی۔ 2 دن جب میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، کھانا کھا لو نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں نے ان کی محبت کا فائدہ اٹھا لیا اور اپنی بات منوا لی۔ حسن کے گھر رشتہ ہونے میں کچھ اچھی باتیں بھی تھی کہ یہ گھر ان کا اپنا تھا اور اس گھر میں حسن اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں بھی پرسکون ماحول کی عادی تھی۔ ہم بھی گھر میں 3 ہی لوگ تھے۔ اسی طرح میرے سسرال میں بھی زیادہ رش نہ تھا اور اس بات سے میرے ماں باپ بھی کچھ مطمئن تھے۔ حسن کی ماں کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اس کی ماں کم اور اس کی بہن زیادہ لگتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی جوان اور حسین تھی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہم قبائلی لوگ ہیں اور میری شادی 14 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو حسن اس دنیا میں آ گیا۔ گویا وہ اپنے بیٹے سے صرف 15 سال ہی بڑی تھی۔ ان کے والد صاحب جلدی دنیا سے چلے گئے جب وہ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ اس بات پر بھی خوش ہوئی کہ میری ساس کوئی روایتی ساس نہیں، بلکہ ان کی اور میری عمر میں تو زیادہ فرق بھی نہیں۔ میری ان سے کافی بات چیت ہو جائے گی۔ میری شادی حسن کے ساتھ بہت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن جس دن میری شادی تھی اس دن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ میری شادی والے دن میری ساس بہت اداس نظر آ رہی ہے، ایسے اداس جیسے ان کے بیٹے کی شادی نہیں بلکہ بیٹی کی شادی ہو۔ پھر میں نے میری ساس اور میرے شوہر کو ایک کونے میں کھڑا دیکھا، جہاں ان کی شکلوں سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی بات پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی شاید کوئی اندرونی بات ہو۔ شادیوں میں ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، شاید ان کو ہماری کوئی رسم پسند نہ آئی ہو یا ہمارے خاندان سے کسی نے کوئی بات کہہ دی ہو۔ میں نے اپنی ساس کو دور سے روتے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، پتہ نہیں وہ کیوں رو رہی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں بعد میں آرام سے پوچھوں گی۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کیا خواب اور سپنے سجائے بیٹھی تھی کہ آج خوب ساری باتیں کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا سوچا ہے۔ میں تو اپنے ساتھ ہنی مون کی ٹکٹ بھی لائی تھی اور بے حد خوش تھی، پر جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں ذرا سلیقے سے بیٹھی، جب کوئی اندر داخل ہوا، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ حسن نہیں بلکہ میری ساس صاحبہ تھی۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا کہ خیر کی خبر ہو اس ٹائم، ورنہ میری ساس کا میرے کمرے میں کیا کام۔ انہوں نے کہا کہ تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، حسن آج کمرے میں نہیں آئے گا، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ باہر چلا گیا ہے، اس کا وہ بہت قریبی دوست ہے، اس لیے رات ہاسپٹل میں ہی رہے گا، تم آرام سے سو جاؤ۔ صبح کا ناشتہ حسن تمہارے ساتھ ہی کرے گا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ مجھے ایک پل کو تھوڑی مایوسی ہوئی، پر خیر، کسی کی جان کا سوال تھا۔ ویسے بھی اب میرا اور حسن کا تو زندگی بھر کا ساتھ تھا، اس لیے میں کپڑے بدل کے سکون سے سو گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر حسن موجود تھا، ہم نے ساتھ ہی ناشتہ کیا اور پورا دن ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ اور جیسے ہی شام ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حسن سامان پیک کر رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے، کیونکہ ہنی مون کا تو ابھی میں نے اسے بتایا ہی نہیں تھا۔
मुझे लगा शायद मुझे कुछ सरप्राइज़ देना चाहता है। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और जब हसन ने बताया तो मेरी तो रूह ही फना हो गई। उसने कहा कि वो बाहर के मुल्क जा रहा है अपनी नौकरी करने के लिए। मैंने उसे कहा कि कल परसों तो शादी हुई है और आप आज जा रहे हैं, 1-2 हफ्ते तो गुजार लें। हसन बहुत मजबूर लग रहा था। उसने कहा कि बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अगर आज मैं नहीं गया तो ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। और फिर मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया है कि तुमको ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। उन खुशियों को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं तो इस बात पे दुखी थी। क्या वो 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकता? हसन ने कहा कि अगर मैं रुक सकता तो रुक जाता। बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने अम्मी से कह दिया है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। 6 महीने यूं ही गुजर जाएंगे। हसन 2 घंटे में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। मैंने भी उसे दुखी दिल के साथ रुखसत किया। मैं परेशान थी पर मैं नहीं चाहती थी कि वो चला जाए। भला किसी का दूल्हा शादी के तीसरे दिन भी जाता है। अभी तो हमने साथ बैठकर बातें भी नहीं की। मेरा तो हनीमून का प्लान भी बीच में ही रह गया। पर मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो मुझे पूरा दिन कोई भी काम नहीं कहती थी, जबकि इस घर में कोई नौकर भी नहीं था। और जब रात होती तो वो मेरे लिए एक दूध का गिलास ले आती। जब तक मैं वो दूध का गिलास पी नहीं लेती वो मेरे सामने ही खड़ी रहती। मैं तो हैरान थी कि आजकल के दौर में भी कोई सास ऐसी होती है जो बहू का बेटी की तरह ख्याल रखे। वो भी मुझे यही कहती थी कि मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनके अब्बू जल्दी इस दुनिया से चले गए और मैंने हसन की वजह से दूसरी शादी नहीं की। अब मुझे तुम मिल गई हो तो तुम ही मेरी बेटी हो, इसलिए रोज तुम्हें एक दूध का गिलास पिलाया करूंगी ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। देखो तो कितनी कमजोर हो गई हो। ये ना हो कि हसन वापस आए और कहे मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखा। सब ठीक ठाक जा रहा था और मैं भी काफी खुश थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि मेरे कदमों तले कोई काली सी चीज लगी थी। कोई ऐसी चीज जैसे लोक हो। मैं हैरान हुई कि मेरे पैरों पे क्या लगा है। कि मेरी आदत थी कि मैं नमाज पढ़ के ही सोया करती थी। वज़ू करते हुए पाँव भी अच्छे से धोती थी। तो वो काली चीज़ कोई हल्की-फुल्की नहीं, क्योंकि मेरे दोनों पैरों के तलवों पर लगी हुई थी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और उसकी तरफ ज़्यादा ख्याल ना किया। शायद कुछ लग गया होगा। और मैंने देखा कि रात को जब मैं सोती हूँ, तो मुझे ख्याल ही नहीं होता कि मैं कब सोई और कब जागी। और रोज़ ही मेरे पैरों के नीचे वही काली सी चीज़ लगी होती थी। गोया जैसे किसी चीज़ की कालक हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात मैं अपनी सास को बताने के लिए नीचे आई और मेरे कानों ने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये लड़की तो अल्लाह मियाँ की गाय है, इसे तो कुछ खबर ही नहीं। मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर एक एक दिन मेरे लिए एक साल की तरह गुजर रहा है। ये सुनकर तो मैं हैरान और परेशान रह गई कि आखिर मेरी सास किससे बातें कर रही हैं। जबकि वो तो कह रही थी कि मैंने मेरे शोहर के जाने के बाद कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। तो फिर ये किससे मोहब्बत जतला रही हैं, जबकि जवान बेटे की माँ थी। और अजीब बात ये थी कि जब से हमारी शादी हुई थी हमारे घर में उनकी तरफ से कोई भी मेहमान नहीं आया था और ना ही किसी ने मेरी दावत की थी, क्योंकि शादियों के बाद तो दुल्हन की दावत करना एक आम सी बात होती है। शादी में भी उनकी फैमिली से गिने चुने 2-3 लोग ही थे। मेरी सास जिससे भी बात कर रही थी उससे मेरा जिक्र ऐसा क्यों किया। मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ। अब मेरे दिमाग में कुछ हलचल मच रही थी। आखिर मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी। मुझे शक हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास रोज मेरे लिए दूध का गिलास लाती है और दूध पीने के बाद गोया मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। एक दिन उन्होंने मेरे लिए दूध का गिलास रखा और कहने लगी कि इसे पी लो। मैंने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है, आप रख दे, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। लेकिन वो तो गोया मेरे सर पर ही सवार थी। कहने लगी नहीं अभी पी लो। मैंने कहा कि मैं 5-10 मिनट तक पी लूंगी। इतने में फ़ोन की आवाज़ आई और मेरी सास बाहर चली गई। मैंने वो दूध उठाकर सिंक में बहा दिया और खाली गिलास रख दिया। जब मेरी सास वापस आई तो मैं अपने होठों पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे मैंने अभी अभी दूध पिया हो। मेरी सास ने सूखा सांस लिया और मुझे शब्बा खैर बोलकर चली गई। आधी रात का वक्त था। जब मैं सो रही थी अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। मैंने आंखें नहीं खोली और सोने की एक्टिंग करती रही। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन आज मुझे पता करना था कि मेरे सोने के बाद मेरे साथ क्या होता है। वो मेरी सास थी और उसके साथ दो और लोग भी थे। उन्होंने मुझे किसी लाश की तरह उठाया और मुझे कहीं ले जाने लगे। मेरी आंखें बंद थी और मैंने महसूस किया कि वो रास्ता 2 मिनट का ही था। शायद मैं घर के अंदर ही थी।
फिर मुझे उनकी आवाज़ें गूंजती हुई महसूस हुई। शायद वो कोई खाली कमरा था। फिर मुझे एक शख्स की आवाज़ आई जो कोई मंत्र पढ़ रहा था और मुझे किसी चीज़ पर लिटा दिया गया। मेरे पैरों पर कुछ लगाया, जो कि शायद वही चीज़ थी जो रोज़ सुबह मेरे पैरों पर लगी रहती और वहाँ पर मंत्र पढ़े जाते। मैं बहुत डरी हुई थी कि किस तरह अपना सांस रोक लूँ। ये अमल 25 मिनट तक होता रहा। फिर जैसे मुझे उठाया था, वैसे ही वापस जाकर लिटा दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और बहुत डर गई थी कि मेरे साथ ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। मैंने हसन का नंबर मिलाने की कोशिश की, पर एक ख्याल बिजली की तरह मेरे दिमाग में आया कि क्या पता हसन भी इस सब का हिस्सा हो, वरना कोई अपनी बीवी को शादी के तीसरे दिन भी छोड़कर जाता है। मैंने सुबह मेरी सास से कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है, रात से पहले पहले आ जाना, मुझे तुमसे काम है। उसे मुझसे क्या काम था, ये तो मैं समझ गई थी। मैं अपने घर आ गई और मैंने सारी बात अपनी माँ बाप को बता दी। वो भी हैरान और परेशान रह गए। मैं बुरी तरह रो रही थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं भी उनका पता करवाता हूँ। पता तो पहले करवाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तुमने हमें कुछ सोचने ही नहीं दिया और ना ही कुछ पता करवाने दिया। बस कहा कि शादी करनी है, पर फिक्र नहीं करो, मैं पता करवाता हूँ। मेरे वालिद साहब के बहुत से लोग जानने वाले थे। उन्होंने पता करवाया और 1 घंटे बाद जो बात हमें पता चली, वो सुनकर हम हैरान और परेशान रह गए। उनका कहना था कि हसन के माँ बाप को मरे हुए 10 साल हो गए हैं और दोनों एक कार हादसे में मरे थे, इसलिए एक दिन में ही उनकी जान गई। और जो औरत हसन के साथ रहती है, वो उसकी माँ नहीं, बल्कि उसकी बीवी है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी वो इतनी हसीन और जवान थी और उसने एक रात भी मुझे हसन के पास नहीं छोड़ा। हसन की लोकेशन पता करवाई तो वो भी बाहर के मुल्क नहीं, बल्कि कराची में ही कहीं बैठा हुआ था। मेरे वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बंदों को लेकर हसन की लोकेशन पर पहुंचे और उसे धर लिया। उसने 2-4 मिनट मजम्मत के बाद बता दिया कि असल बात क्या थी। वो मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी है और यही सच है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारे घर औलाद नहीं। मेरी बीवी ने कामिल बाबा से राब्ता किया। उसने कहा कि अगर तुम एक कमसन लड़की की कुर्बानी दो जिसकी आंखें नीली हो, तो तुम्हारे घर एक साथ 4 बेटे पैदा होंगे। मेरी बीवी बहुत जिद्दी है और वो घर भी मेरी बीवी का है। नौकरी भी मुझे बीवी की वजह से मिली है। वो मुझसे अपनी हर बात मनवा लेती है और ये सब उसी का प्लान था। उसने आलिया को मार्केट में देखा, फिर उसके बाद सारी मालूमात जमा की। अमल के मुताबिक 20 दिन तक उसने आलिया पर कोई मंत्र वगैरह पढ़ने हैं और उसको दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे देती थी। 20 दिन के बाद वो आलिया की जान ले लेगी। मेरे वालिद साहब ने हसन को पुलिस के हवाले कर दिया और मेरी उसे तलाक करवा दी। और पुलिस के हाथों हसन की बीवी रुताबा बेगम को भी पकड़वा दिया। उन पर 420 धोखाधड़ी का केस कराया। मैं अपने घर वापस आ गई। अगर वक्त रहते मैं इन सब चीज़ों को पहचान ना पाती, तो शायद मेरी जान चली जानी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हुए इस हादसे से यही सीखा कि किसी की मोहब्बत पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। जो मोहब्बत हमसे हमारे माँ बाप करते हैं और कहीं नहीं कर सकता। जो फैसला वो करते हैं वही सबसे बेहतरीन होता है।